جس آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ سب لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں تو سنتے تو ضرور ہوں گے، کیونکہ اب سے پہلے اس چیز کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، مگر اب ہم نے یہ امام کی ذمہ داری سمجھ لیا ہے نہیں ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے اور جب قبر پر دفن کا نمبر آتا ہے یا مٹی دی جاتی ہے نا، تو مٹی دینے بعد میں جاتا، آواز پہلے لگا دیتا ہے، بولے امام صاحب آیت پڑھ دیو کھڑے ہو کے۔ یار ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ امام کا حق ہے؟ یہ امام کا حق ہے؟ نہیں ہے نا۔ دفن میں آپ گئے ہو، آپ اپنا کرایہ خرچ کیا، ٹائم خرچ کیا، سب کچھ خرچ کیا، دفن میں آپ گئے تو آپ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ آپ تھوڑی سی وہ آیت، زیادہ لمبی چوڑی تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی آیت بھی یاد نہیں کر سکے؟ اور تو اور جب نماز کا نمبر آتا ہے نا تو وہاں بھی گروپ دو بند ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے 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 تھک گئے، بھائی کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں، تو کم سے کم تکبیریں تو یاد ہی ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر جس صرف خالی جماعت میں کھڑے ہو جائے نماز ہو جائے گی، مگر نہیں، پھر بھی الگ ہی کھڑا ہونا ہے۔ پتہ نہیں گھر سے عہد کر کے چلتے ہیں کہ چاہے ہو کچھ بھی جائے نماز پڑھنی ہی نہ ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اس کی فضیلت، سنا ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لکھا ہے کہ اگر مرنے والا نیک ہے نا تو اس کے صدقے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے تو اس کے ذریعے اس مرحوم یعنی میت کی جو جنازہ سامنے رکھا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یار فری میں اتنا بڑا آفر ہمیں مل رہا ہے، پھر بھی ہم اس کو نہیں لے رہے، تو ہم سے بڑا کم نصیب کون ہو سکتا؟ بہرحال اس چیز کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر حق ہے، مرنے والے کا ہم پر حق ہے، ہم اس کو ادا کریں۔ اگر جب تک تمہارے یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، تب تک آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہو، ہے نا۔ یہ ایک پروگرام میں کسی نے کہا تھا، اس طرح سے کہا تھا کہ منہا خلقناکم آیت پڑھ لیا کرو، تو ایک بڑے میاں کھڑے ہو کر کہنے لگے، لے جتنے مولوی اتنی باتیں، ہم نے آج تک سارے مردے بسم اللہ سے دبا دیے، کوئی اٹھ کے تو آیا نہ ہے۔ نہیں ایسا ہے نا، بولے آج تک ہم نے بسم اللہ سے دبا دیا، کوئی اٹھ کے تو آیا نہ ہے، انہوں نے نئی بات بتائی ہے، اسے یاد کرو۔ تو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے، اگر یاد کرو تو یہ ہمارا تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، ایک چیز اور، اللہ نے اتنے بڑے قرآن میں صرف اسی آیت کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ قرآن شریف اتنا موٹا، 30 پاروں پر مکمل، الحمد سے والناس تک، رب نے مٹی دیتے وقت خالی اسی آیت کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کوئی راز، کوئی مصلحت، کوئی وجہ، کوئی حکمت کچھ تو ہوگا۔ تو وہ وجہ یہی ہے، آج ہم اور آپ بھی اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم جانے نہ جانے مگر ہمارا رب جانتا تھا، جانتا ہے اور جانتا رہے گا۔ اللہ نے اس لیے حکم دیا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ او انسان، او بندے، تجھے اسی مٹی سے بنایا تھا اور اسی میں دیکھ آج اسی میں ملایا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر اسی مٹی سے زندہ کر لیا جائے گا، دوبارہ سے پھر اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب اس لیے کہ انسان اپنے، اگر اللہ کسی کو طاقت دے، اللہ کسی کو جسم دے، اللہ کسی کو صحت دے، اللہ کسی کو قوت دے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی جسم و جسمانیت پر گھمنڈ، فخر، تکبر کرنے لگے اور کمزور پر زیادتی کرنے لگے، تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے او انسان تیری اوقات اس مٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس انسان تیری اوقات اس مٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جب انسان کو اپنا وجود سمجھ میں آئے گا نا تو خود بخود اس کے ذہن سے، وہ دماغ سے، وہ تکبر والے الفاظ، جملے خود بخود نکل جائیں گے۔ انسان کو اپنے، کیونکہ ہر ایک انسان کو اپنے وجود کا پتہ ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو اپنے وجود کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب اپنے وجود کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو انسان آپے سے باہر ہو جائے گا، اور جب اپنے وجود کا پتہ ہوگا تو انسان اپنی لیمٹ میں، اپنی سرحد میں، اپنے حد کے، اپنے حدود میں رہے گا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ بات آئی اپنے وجود کی اوقات کی تو سنتے چلیں، بڑے غور سے توجہ سے سننے کی بات۔ سلطان محمود غزنوی، انہی کا ایک وزیر جس کا نام تھا ایاز، سلطان محمود غزنوی کے وزیر جس کا نام تھا ایاز۔ اب بادشاہ اپنے اس وزیر کو بہت پیار کرتے، بہت چاہتے تھے۔ یہ سلطان محمود غزنوی ایک ولی صفت بادشاہ گزرے ہیں، وہ بادشاہ کہ جن کے بھانجے کو تاریخ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ غازی پاک کہ جن کا ہم اور آپ آج بھی نیزہ کرتے ہیں، یہ انہی کے بھانجے ہیں سید سالار مسعود غازی کہ جو 18 سال کی عمر میں
18 साल की उम्र में जामे शहादत नोश फरमाया। इतना बड़ा मर्तबा रब ने इनको अता फरमाया कि तमाम वलियों की शान, तमाम वलियों की असमत, तमाम वलियों की तारीफें उलमा ने लिखी हैं, मगर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत और शान उलमा ने नहीं बल्कि वलियों ने लिखी है। जिनकी शान वली बयान कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा मर्तबा रब ने अता फरमाया होगा। उन्हीं के मामू सुल्तान महमूद गजनवी बाद अपने वजीर अयाज को बहुत चाहते, बहुत प्यार करते। जब जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा आदमी किसी को ज्यादा चाहने लगता है ना तो उसके फिर हसद करने वाले भी हो जाते हैं। अब वजीर बादशाह के दरबार में जो और सिपाही थे ना, अब वो अयाज से हसद करने लगे, अयाज से हसद करने लगे। बोले यार बादशाह अयाज को बहुत चाहता है, बादशाह अयाज को बहुत चाहता है, चलो ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा काम कर दो कि अयाज बादशाह की नजरों में गिर जाए और बादशाह अयाज को ना चाहे। अब लोग पीछे लग गए, सारे सिपाही पीछे लग गए कि कोई काम ऐसा किया जाए, कोई ऐसा किलो हाथ आ जाए, कोई ऐसा लूज पॉइंट हाथ आ जाए कि जिससे बादशाह की नजरों से अयाज गिर जाए और बादशाह अयाज को अपने दरबार से धक्का देकर बाहर कर दे और इसकी जगह हमें वो मर्तबा अता फरमा दे। लोग पीछे लग गए तो क्या देखा, एक रोज देखा कि अयाज अपने दरबार से जब निकले तो निकलने के बाद अपने कमरे में गए तो जो हासिदीन थे, जो हसद करने वाले थे, जो जलन रखने वाले थे, वो पीछे पीछे गए और जाकर के देखा तो अयाज अपने कमरे में गए। जब कमरे में दाखिल हुए ना अयाज, तो कमरे में दाखिल होने के बाद अयाज ने एक ताक में एक किवड़िया लगा रखी थी, किवड़िया में ताला, ताले को खोला, ताक को खोला और खोलने के बाद अंदर कोई चीज पोशीदा थी, उस चीज को देखा, चूमा और रखा, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी, वापस आ गए। अब हासिदीन खुश हुए, बोले आज तो हमें किलो हाथ लग गया, आज हमें अयाज की चोरी हाथ लग गई। हो ना हो, अयाज ने अपने कमरे के अंदर इस ताक के ताले के अंदर कोई ना कोई कीमती खजाना छुपा रखा। बादशाह की कोई चोरी करके इसने कोई कीमती खजाना छुपा रखा है, बस यही बहुत है बादशाह की नजरों से गिराने के लिए। वापस बादशाह के पास गए, हासिदीन जाकर के कहा बादशाह सलामत, आप जिस अयाज को प्यार करते हो, आप जिस अयाज से मोहब्बत करते हो, आप जिस अयाज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो ना, तो तुम्हारा वो बादशाह तो बड़ा ही बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, बड़ी गिरी हुई सोच का इंसान है, उसके तो बड़े फाल्ट हाथ आया। बादशाह ने कहा क्या बात है बताओ। तो उन हासिदीन ने कहा कि बादशाह बात यह है कि जो अयाज आपके दरबार में रहता है ना, आपने जो उसका पूरा मालिक और मुख्तार बना रखा है, उसके कमरे में एक चोर ताक है, एक पोशीदा ताक है और उस ताक में अयाज ताला लगा कर रखता है और अकेले में तन्हाई में जब कोई नहीं होता तो उसको जाकर खोलकर देखता है। बादशाह सलामत, हम ये कहते हैं कि वहां पर कोई ना कोई कीमती खजाना दरबार शाही का मौजूद है, आप चलकर के तलाशी लो, पता चल जाएगा। बादशाह ने कहा कि ठीक, आने दो अयाज को। अयाज आए, सारा दरबार सजा हुआ, बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठे, सारे सिपाही जो हासिदीन थे दिल ही दिल में खुश हो रहे कि आज तो अयाज का पत्ता साफ, आज तो अयाज का यहाँ से टिकट साफ हो जाएगा। अयाज आए, बादशाह ने कहा ओ अयाज इधर आओ, अयाज इधर आओ। अयाज आए, बोले बादशाह सलामत, जा पना, गुस्ताखी की माफी, जा पना, क्या बात। बादशाह ने कहा ओ अयाज, ये तुम्हारे साथी तुम पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे कमरे में एक चोर ताक है, पोशीदा खुफिया ताक है और उसको तुम अकेले में जाकर खोलकर देखते हो। अयाज ने कहा हाँ बादशाह सलामत ठीक कहते हैं। जब अयाज ने हाँ कर दी तो वो जो हासिदीन थे और खुश हुए, बोले बात, हमारा शक बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है, हमारा तीर सही निशाने पर लग रहा है। अयाज ने कहा हाँ बादशाह सलामत, बात ठीक है, मेरे कमरे में खुफिया ताक है, ताला भी है और अकेले में मैं उसको देखता भी हूं। बादशाह ने कहा क्या चीज है। अयाज ने जब इतना सुना ना तो आंखों में आंसू आ गए। अयाज ने जब बादशाह के मुंह से इतना सुना, बादशाह ने कहा अयाज क्या चीज है दिखाओ। तो अयाज की आंखों में आंसू आ गए, कहा सरकार आप चल करके खुद देख ले। अयाज चले, बादशाह पीछे पीछे, अयाज आ गया, पहुंचे कमरे में, ताक के पास पहुंचे तो उन हासिदीन ने कहा ओ बादशाह सलामत, आप ताला अयाज से नहीं खुलवाएंगे, ताला हम खोलेंगे, हो सकता है कि ये ताला खोले तो ताला खोलते वक्त उस चीज को दुबका दें, इसलिए ताला हम खोलेंगे। बादशाह ने कहा ठीक, क्योंकि बादशाह को तो अब भी शक नहीं था, लेकिन उन हासिदीन का शक दूर करने के लिए बादशाह को अयाज के पास जाना पड़ा। अब बादशाह ने अयाज से कहा ताला खोला गया, ताला खोलने के बाद देखा तो उसमें 3 चीजें, ताक में 3 चीजें, एक चीज
अयाज के फटा हुआ कुर्ता, तैमन लगा हुआ कुर्ता और एक धोती जिसको तहबन कहा जाता, पुरानी धोती और टूटे हुए चप्पल, 3 जोड़ी उस ताले के अंदर खुफिया ताक में नजर आई। फटा हुआ कुर्ता, एक तहमन पुराना, टूटे हुए चप्पल। बादशाह ने देखा, देखने के बाद अयाज से पूछा, ओ अयाज ये बताओ, ये कोई ताक में रखने की चीज है, ये कोई छुपाने की चीज है, ये कोई आड़ से रखने की चीज है? अयाज ने इतना सुना तो अब अयाज के जुमले सुनो और अगर आपके दिल पर असर कर जाए तब कहना। अयाज ने कहा था, ओ बादशाह सलामत, ये बात तो ठीक है कि ये चीज छुपाने की नहीं है, ये बात तो ठीक है कि ये चीज अंदर खुफिया ताक में रखने की नहीं है, मगर बादशाह सलामत, आज मैं जो कुछ यहाँ तक पहुंचा हूँ ये मेरा कमाल नहीं है, ये तुम्हारी अता का नतीजा है। ओ बादशाह सलामत, जब मैं आपके दरबार में नौकरी के लिए आया था, जब मैं आपके दरबार में मुलाजिमत के लिए आया था, तो बादशाह यही चप्पल मेरे पैर में थे, यही कुर्ता मेरे बदन पर था, यही तहमन मेरी टांगों में था। ओ बादशाह सलामत, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तो मेरे पास इतना पैसा था कि मैं एक वक्त का खाना खा सकता, ओ बादशाह, ना मेरे पास कोई और कपड़ा था जिसको मैं पहन सकता था, ओ बादशाह, मेरे पास कोई और चप्पल था कि जिसको बदले में पहन सकता। जब आपने मुझको नौकरी पर रखा, जब आपने मुझको अपने पास रखा, तो तुम्हारी अता मुझ पर होती गई, तुम्हारा इनाम मुझ पर बरसता गया, तुम्हारी नौकरी से तनख्वाह मुझको मिलती गई, मैं तरक्की करता चला गया। नया कपड़ा मैंने खरीदा तुम्हारी अता से, नया चप्पल मैंने खरीदा तुम्हारी अता से, नया कुर्ता मैंने खरीदा तुम्हारी अता से। ओ बादशाह सलामत, ये जो कुछ भी मेरे पास है ये मेरा अपना कमाल नहीं है, ओ बादशाह ये तुम्हारी अता है। अब जरा तवज्जो रखो, ओ इंसान, जब तुझे रब ने पैदा किया था तो तेरी कंडीशन ये थी, तेरी सूरत ये थी कि तू अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को हटा नहीं सकता था, अपने दर्द किसी से कह नहीं सकता था, तेरी कंडीशन ये थी, अगर तेरे तकलीफ थी तू बयान नहीं कर सकता था, तू अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता था, अपने बदन पर कपड़ा नहीं पहन सकता था। आज तू चलता है, तेरे रब की अता है, आज तू पहनता है, तेरे रब की अता है, आज तू खाता है, तेरे रब की अता है, आज तू पोशीदा अच्छे उम्दा लिबास पहनता है, तेरे रब की अता है। आज जो कुछ है तेरा अपना कमाल नहीं बल्कि तेरे रब की अता तुझ पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दामाए सुन्नत, हज़रत आला हज़रत। तो हज़रात, आज हमारी तो वो पोजीशन थी कि हम अपने बदन पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा नहीं सकते थे, हमें तकलीफ थी तो हम किसी को बता नहीं सकते थे, हम अपने पैरों पर खड़े होकर एक कदम चल नहीं सकते थे, हम अपने बदन पर बेहतरीन आलीशान कपड़ा पहन नहीं सकते थे। आज अगर हम अच्छा बोलते हैं, आज अगर हम अच्छा बेहतरीन लिबास पहनते हैं तो ये हमारी खूबी नहीं है, यह मेरे रब की अता है, मेरे रब की अता है। तो इंसान अपने वजूद को कभी मत भूलना, इंसान अपनी हैसियत को कभी मत भूलना, बल्कि जो कुछ भी है ये तेरे रब की अता है। अपने रब की अता पर नाज करना। जिसे कोई ना जाने उसे रब जानता है, और राज को राज ना समझो वो सब जानता है। जिसे कोई ना जाने उसे रब जानता है, राज को राज ना समझो वो सब जानता है। मांगना है तो अपने उस प्यारे रब से मांगो जो जुबां पे आने से पहले दुआ की वजह जानता है, जो जुबां पे आने से पहले दुआ की वजह जानता है। हजरात मोहतरम, ये मरहूम यासीन नंबरदार इस घर से इंतकाल फरमा चुके, लेकिन हजरात मोहतरम देखें, एक रोज हम और आपको सबको ही जाना है, ऐसा नहीं है कोई के यहाँ पर अमर रहेगा, सबको एक एक करके इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन मौतें भी दो तरह की, एक तो आज के दौर में तो बड़ी तरक्की के साथ मौतें हो रही हैं, एकदम तड़ातड़ मौतें, और एक चीज और है, ये मौत हो जाती है ना, लोग कहते हैं भूल गए, भूलता कोई नहीं है, या कोई भूलता है? भूलता कोई नहीं है, मगर रब सब्र दे देता है नहीं है? अल्लाह सब्र दे देता, भूलता कोई नहीं है। यार कैसे भूल जाएगा? हमारा बाप, हमारी माँ, भाई बहन हमारी नजरों के सामने इंतकाल कर गए, कैसे भूल सकती? मगर अल्लाह सब्र देता है, ये क्योंकि यही निजाम कायनात है, आना और जाना। अगर ना भूले ना तो ये इंसान अपनी जिंदगी में आगे किस तरह से बढ़ेगा। एक इंतकाल हुआ था, अभी लगभग महीना भर हुआ है,
बहन की बारात आने वाली थी, बहन की बारात आने वाली, छोटा भाई 18-19 साल नौजवान लड़का सामान लेने के लिए जा रहा था। अचानक उस चीज से कि जिस चीज से कोई गुमान भी नहीं कर सकता, हाईवे से उतर के आ गया, हाईवे खत्म। एक मामूली से कच्चे रोड पर जब अपने घर की तरफ को चला तो घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो बैटरी रिक्शा होता है, बैटरी रिक्शे से टकराया और टकराने के फौरन बाद इंतकाल हो गया। बताओ कोई भूल सकता है ऐसी मौत को? यार बहन दुल्हन बनी सजी बैठी है और भाई बैटरी रिक्शे से टकराकर मुरादाबाद पार कर लिया, हाईवे सब कुछ पार करके आ गया, घर में आकर के बैटरी रिक्शे से टकराकर इंतकाल हो गया। तो क्या कोई ऐसी मौत भूल सकता? नहीं भूल सकता, लेकिन ये अल्लाह सब्र दे देता, अल्लाह सब्र देता। इसलिए तो अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कि इंसान 3 दिन तक सिर्फ मौत का गम 3 दिन तक मना सकता है, शोक 3 दिन तक मना सकता है और खुशी की कोई हद नहीं। अल्लाह के रसूल ने खुशी की कैद नहीं लगाई, इंतकाल हो गया तो कहा कि 3 दिन तक शोक मना सकता, गम मना सकता, उसके बाद गम मनाना शोक मनाना जायज नहीं है। जो आपने भी सुना होगा कि हम और आप नबी की रबीउल अव्वल शरीफ पर बड़े खुशी के साथ एहतमाम करते हैं, जुलूस निकालते हैं ना, तो जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि लो इसी दिन नबी का विसाल हुआ और इसी दिन ये लोग खुशी मनाते हैं। तो बहरहाल हम उन्हीं की बात का जवाब देते हुए कहते हैं अल्लाह के रसूली का फरमान है कि 3 दिन तक गम मना सकते हो, बाकी फिर गम नहीं मना सकते। तो यार नबी की बात तो छोड़ें, एक आम इंसान के बारे में ये बात है कि बाद में गम नहीं मना सकते, बस 3 दिन तक मना सकते हैं। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र दे देता। तो मौत आए 2 तरह की, एक तो आज के दौर में बड़ी तार मौतें हो रही है, दूसरी मौत वो जो कि बिस्तरे मर्ग पर महीनों 22 दिन 25 दिन 10 दिन 15 दिन से बीमार पड़ा और उसी कश्मकश के आलम में मौत आ गई। तो देखिए मैं तो ये कहता हूं, आप चाहे कुछ भी समझे, मगर मैं ये कहता हूं कि वो मौत उस मौत से कहीं ज्यादा बेहतर है जो कि बिस्तर पर इंसान बीमार पड़ा है और बीमारी की हालत में मौत आ जाए, वो उस मौत से कहीं ज्यादा बेहतर है जो चलते फिरते अचानक मौत आती है। क्योंकि बड़े बुरे लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ खिदमत ना कराई, चलते फिरते अचानक मौत आ गई। कहते नहीं कहते कि चलते फिरते अचानक मौत आ गई बड़ी अच्छी मौत समझती, लेकिन मैं कहता हूं कि उससे अच्छी मौत वो है जो चलते फिरते नहीं, बिस्तर पर बीमार पड़े पड़े महीनों 20 दिन 25 दिन या महीना गुजर गया फिर मौत आई। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि उसकी वजह यह है, सुने, इंसान आज दुनिया में इतना मुस्तगरक हो गया है, इतना खो गया है कि इंसान जब दुनिया में रहता है ना तो उसको अपनी आखिरत याद नहीं आती, अपनी कब्र याद नहीं आती, अपनी हश्र याद नहीं आती, अपनी मौत याद नहीं आती। और जब ये तमाम चीजें इंसान भूल जाता है तो इंसान के जहन में पता नहीं क्या क्या आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान फिल्मी गाने भी गा रहा होता है, कानों में एयरफोन वगैरह भी लगी होती है, इंसान गीत गजलें भी गा रहा होता है, इंसान कुफरी अल्फाज जुमले भी जुबान से निकाल रहा होता है। मान लीजिए अचानक मौत आ गई और जुबान पर कोई गाना उसके हुआ तो क्या होगा? अचानक मौत आ गई, जुबान पर कोई गजल हुई तो क्या होगा? अचानक मौत आ गई, जुबान पर कोई फिल्मी तराना हुआ तो क्या होगा? अब आइए उस इंसान को देखें जो बीमार पड़ा है। जब इंसान बीमार होता है तो आप सब जानते हैं, तजर्बा किया होगा कि जब इंसान बीमार रहता है, जब तक बिस्तर पर रहता है तब तक जुबान पर उसके ना तो माँ का नाम आता, ना तो बाप का नाम आता है, ना किसी खानदान वाले का नाम आता है, ना किसी अजीजो अकरबा का नाम आता है। अगर नाम आता है तो बस अल्लाह का नाम आता है, नाम आता है तो बस अल्लाह के रसूल का नाम आता है। बस इसकी जुबान पर यही रहता है, या अल्लाह बस ठीक कर दे, या अल्लाह बस ठीक कर दे, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, या अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे दे, या अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर दे। इंसान जब तक बीमार रहता है तब तक उसकी जुबान पर अल्लाह का नाम जारी रहता है, जब तक बीमार रहता है तब तक उसकी जुबान पर अल्लाह के रसूल का नाम रहता है। कभी किसी वली को पुकारता है, कभी नबी को पुकारता है, कभी अल्लाह को पुकारता है। वो इंसान याद रख, तवज्जो से जुमले को सुन लो, जब तक बीमार रहता है माँ पास खड़ी है मगर जुबान पर अल्लाह ही अल्लाह, बाप सामने खड़ा है जुबान पर अल्लाह ही अल्लाह, भाई सामने खड़ा है जुबान पर अल्लाह ही अल्लाह, अजीज और अकरबा नजरों के सामने खड़े हैं मगर जुबान पर अल्लाह ही अल्लाह। ए इंसान, अपने दिल और दिमाग को हासिल करके अपने सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी से मुझे बता दे कि जब इंसान की जुबान पर अल्लाह का नाम जारी होगा
मुस्तफा का नाम जारी होगा और उस वक्त जब उसकी रूह उसके बदन से जुदा होगी तो कितनी अच्छी मौत उसको अता होगी। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का चाँद उनके हाथों से जिनका मोहम्मद है नाम, रूह निकलती रहे, दिल ये कहता रहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, यानी शादाब रजा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब देखिए मौत वो अच्छी हुई या ना हुई? यार जुबान पर अल्लाह का नाम और रूह निकल रही, तो कितना अच्छी बात है। या रब मुझे बचाना, जब जान तन से निकले तो या मोहम्मद कलमा जुबान से निकले, लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। तो हजरात मोहतरम, ये है उस मौत का फायदा जो कि बीमारी की हालत में आती है।